So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we are going to look at some of the problems that you encounter when we start applying machine learning to some problems, to real world problems, and how to tackle those problems. Okay. And before doing that, as usual, let me also recap the that where we are in this course. So we are still in the supervised learning domain, and we have looked at both classification and regression algorithms that fall within the supervised learning category. So regression and classification. Okay. And in so the artificial neural network that we studied in the last 2 weeks, they are applicable to both the regression and classification algorithms. So today's lecture will be also focused with to the same this artificial neural network, that what are the different problems that we can encounter and how to address them. Okay, so this lecture is also more geared towards the artificial neural network. So when you apply those networks, so artificial neural network, to the problems of classification and regression, what are the problems that we encounter? So the first problem that we encounter, or one of the problems, is the problem of overfitting. And we have discussed overfitting in previous lectures as well. And when we talked about decision trees, when we talked about naive Bayes and other algorithms, so we have been talking about overfitting. Similarly, you have also done the labs related to overfitting. So we are going to talk about overfitting with respect to the artificial neural network and how do you avoid that situation. And we will talk about basically three methods to avoid overfitting: regularization, dropout, and early stopping. Later on, we are going to study the how to select the model. If you have multiple hypotheses, let's say if you have different artificial neural network architectures, then how do you choose that which one is better than the other? Okay, what are the criteria and how do you go about that? Bias variance trade-off, which is a concept similar to overfitting and underfitting. We're going to go through that and decide that the model or our prediction is how how well the prediction is, what is the bias and variance error in our prediction. And then the precision and recall. These are some metrics which help us in evaluating our algorithms. So let's start with the problem of overfitting. And so what is the problem? Let's discuss that, or let's try to understand the problem using this example of linear regression. Let's say we want to predict the pricing of the house given its size. So the feature here is size. So X is basically the size of the house. I can have multiple hypotheses here. The simplest is a linear hypothesis, which is simply what we have done, the in when we studied linear regression, or when we studied the perceptron also. So this is just one neuron, and we are trying to predict the houses based on the feature. The other thing that we can do is that we can have more complex uh, the hypothesis by looking at some higher order or higher power of our input feature. For example, we can add another feature which is simply the square of the feature. If it is x, so if we know that x is the size of the house, so we can add another feature which is the square of the size. And naturally, when you add another feature, then you also need to learn the parameter corresponding to that. We can go even further, and we can have another hypothesis where we add the square. We also add a cube. We also add, let's say, 3, this is 4, the fourth power. Okay, so all these are valid hypotheses. So and they are written here. This is the first linear hypothesis, second hypothesis, third hypothesis.
So what do you think the output of the first hypothesis would be? I mean, what kind of the prediction would be in case of the first hypothesis? This one or this one here. Given that you have, these are my training data, these 5 points are my training data. So what will be the output? What will be the prediction like? And I'm going to, because otherwise I do not understand if you are available or you're listening or not. I'm going to randomly ask questions and your attendance will be based on that. I will take the attendance. आज तो चले वो कलम जो है initially चल नहीं रहा था, अभी चल नहीं रहा. लेकिन even if I have taken the attendance, मैं आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपका वो क्वेश्चन आप नहीं करते, I mean सही या गलत देना की बात मैं नहीं कर रहा. I just need some response. और अगर आप नहीं वो देते तो आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस. ठीक है, अदरवाइज आई वुड अज्यूम कि आप एब्सेंट है. ओके, दानिश खान. दानिश खान. यस सर. अच्छा, ये पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जो पहले केस में हम ये कंसिडर कर रहे हैं, इसमें ये बताएं कि जो प्रिडिक्शन होगी उसका कर्व किस तरह का होगा. व्हाट वुड बी द शेप ऑफ दैट कर्व भी, अगर हम यहाँ प्लॉट करना चाहें उसकी प्रिडिक्शन को. सर ये लीनियर होगा इसका ग्राफ. ठीक है, इट विल बी, क्योंकि ये लीनियर हाइपोथेसिस है तो प्रोबेबली इट विल बी समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ओके, थैंक यू. सिमिलरली फॉर द सेकंड केस, जो चूंकि इसमें आपके पास एक स्क्वायर टर्म है, आपने साइज का स्क्वायर लिया है, तो यू विल गेट अ शेप, यू मे गेट अ शेप लाइक दिस. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो एंड इन द थर्ड हाइपोथेसिस यू आर कंसिडरिंग एक्स क्यूब भी कंसिडर किया है, एक्स फोर्थ पावर भी किया है. तो आपकी जो बनेगी आउटपुट, इट मे बी अ शेप लाइक दिस. नाउ यू हैव ऑल दीज थ्री हाइपोथेसिस. ये तो हमने तीन हाइपोथेसिस यूजिंग डिफरेंट फीचर्स हमने ऐड किए, उस तरीके से बनाया है. व्हाट वी कैन आल्सो डू इंस्टेड इज कि आप मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट, जिसमें आपका सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, इट इज गिविंग यू द आउटपुट which is your H1, and then you have the input, this is the bias term, and then this is the input. ठीक है, ये तो आपका मॉडल है पहली केस में. दूसरे केस में इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग हायर ऑर्डर पावर, व्हाट यू कैन डू इज के लेट्स से यू से कि आई विल हैव एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसमें आपके पास एक हिडन लेयर है. तो सॉरी, ये मैंने इसको, ठीक है, ये आपको हिडन लेयर है एंड सो समथिंग लाइक दिस. और उसके बाद फिर आपका आउटपुट आ गई. दिस इज अनदर मॉडल. ठीक है, here you can have a model where you have a more complex model जिसमें आपके दो हिडन लेयर हैं. फॉर एग्जांपल this is your input, one and x, one is, and this is your model, this is the third hypothesis. ठीक है, and these hypotheses they don't relate to the polynomial जो expression यहाँ लिखी हुई है. What I am trying to say is कि you can either add new features and get a non-linear decision or prediction, or you can also add more layers. So both are valid ways of increasing the complexity or getting a non-linear prediction. But the point I'm trying to make in this slide is that once you have multiple hypotheses, either by adding new features or by having a deeper network, how do you say which one is better? How do you determine कि इनमें से तीनों में से बेहतर कौन सा है? या how do you say कि किस में overfitting है, किस में underfitting है, किस में सही prediction आ रही है? अगर आपसे इस टाइम पे स्लाइड गिवन है, जो आउटपुट गिवन है बाय विजुअल इंस्पेक्शन, इफ आई आस्क यू कि इन तीनों जो आपके पास जो हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, लेट्स फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट अबाउट दीज, लेट्स फोकस ऑन दीज थ्री हाइपोथेसिस. इन तीनों हाइपोथेसिस में विच वन डू यू थिंक इज ए बेटर प्रेडिक्शन, अ बेटर हाइपोथेसिस? माज बिन ताहिर. यस सर. जी, कौन सा बेहतर है प्रेडिक्शन इन तीनों में से?
सर इन तीनों में से x स्क्वायर, ये बीच वाला। तो एंड व्हाई डू यू से सो, क्या रीजन है इसकी कि आप कह रहे हैं कि ये जो है बेहतर है बाकी सर बाकी की पहले थर्ड वाले में ओवरफिटिंग हो रही है, और ठीक है, पहले वाले में हम काफ़ी पॉइंट्स को एरर्स आता है पहले वाले में, इसलिए मैंने सेकंड वाला कहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो पहले वाले में भी एरर आपका ज़्यादा है। अगर इफ़ यू कंप्यूट द एरर, एरर इज बेसिकली कि ये जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम योर प्रिडिक्शन, दिस इज द एरर, राइट? क्योंकि दिस इज योर एरर h of x minus y square, which is essentially this distance or the square of the distance. तो इस डिस्टेंस आपका इधर भी ज़्यादा है, इधर कुछ कम हो गया और इधर बिल्कुल ख़त्म हो गया, राइट? ये एरर ट्रेनिंग सेट में तो आपका कम है, लेकिन स्टिल यू आर सेइंग कि दिस वन इज़ बेटर। एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ आपके पास ऑल्दो ट्रेनिंग सेट जो गिवन है वो तो एरर आपका कम है, लेकिन यू कैन ईजिली सी कि जब आप इसको नए पॉइंट्स पे प्रिडिक्शन करेंगे तो you will get values which will fluctuate a lot. For example, यहाँ एक अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ फाइंड करते हैं, if this is the size of the house, you're getting the price over here. If this is the size of the house, you're getting price lower. और पीछे आते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है। So what you can say from this figure is that the algorithm, although the training error is low, but this will not be able to generalize to new examples. So that is the definition of overfitting. If we have too many features, तो जैसे यहाँ पे फीचर्स आपने मुख्तलिफ ऐड किए थे, और if the model is complex, और if the मॉडल जो आपका आर्किटेक्चर है, मॉडल इज डीप कह लें या कॉम्प्लेक्स, ठीक, जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था, then what will happen is that the learned hypothesis may fit the training set very well. जैसे इस केस में ट्रेनिंग सेट को तो बिल्कुल अच्छा फिट कर दिया है, एरर आपको ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है, बट फेल्स टू जनरलाइज टू न्यू एग्जांपल्स। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरफिटिंग, कि आपका जो मॉडल है, जो हाइपोथेसिस है, इट हैज़ basically predicted or fitted your examples very well, or maybe in some cases it has fitted the noise. So we do not want that. We want a model के जिसमें ऐसी सिचुएशन ना हो, बट वी डू नॉट ऑल्सो वांट दिस मॉडल के जो कि बिल्कुल ही आपका एक गलत प्रेडिक्शन दे रहा है। यू कैन इजीली सी के एज द साइज ऑफ द हाउस इंक्रीजेस, the price will increase, but later on it does not increase as much as it was increasing before. तो वो आपका स्ट्रेट लाइन भी ठीक नहीं है। तो वी वांट समथिंग के जो जनरल पैटर्न तो आपको दे दे डाटा सेट में से, बट इट शुड नॉट बी फिटिंग द डाटा, हर एक पॉइंट को वो फिट करने की कोशिश ना करे, ठीक है? अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग इज फिटिंग द डाटा। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन अनदर वे कि अगर लेट्स से आप इस पॉइंट को रिमूव करते हैं यहाँ से टोटली, यानी कि इस डाटा सेट को हटा देते हैं, then you are going to get a very different shape here, but that may not happen in this case or in this case, ठीक है? तो इस यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ your hypothesis or your prediction, it is fitting your training set so well कि by changing one or two points, your prediction is very sensitive. It is going to change a lot, but that is not going to happen when you are not overfitting, for example in these two cases. So we are going to actually look at that also, that definition, okay, that is also called variance. When your model or prediction is sensitive to the training data, then you can say that you may have overfitted, and then you need to avoid that. You need to come up with some mechanism to avoid that, ठीक है? तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई, what is the overfitting and how and we are trying to avoid that, ठीक है? तो अभी हमने आगे पढ़ना है कि आगे देखना है कि what are the ways with which we can avoid overfitting. ये एग्जांपल थी लीनियर रिग्रेशन की. द सेम हैपेंस इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन आल्सो. यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल model, a linear hypothesis. It is going to give you a straight line decision boundary, and you can easily see here it is not the right thing because the data set has a non-linear decision boundary, and so you add more features or make your model more complex, add more layers, you may get a decision boundary which is better than before,
But if you make it more complex or add more features, you may get a decision boundary which is highly irregular and trying to fit each data point. देखें यहाँ से इसने ये प्लस जो था इसको भी सही क्लासिफाई करने के लिए decision boundary आपकी इस तरीके यहाँ से गुजर के यूँ जा रही है. But in actual you know कि ये may be this data set is a noise. या इसको अगर आप ये यहाँ लाई कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये ठीक या डेटा सेट में कोई नॉइज था या देर आर सम अदर इश्यूज. डिसीजन बाउंड्री को इस तरीके होना चाहिए था कि जब एक नया डेटा सेट आए इस जगह पे फॉर एग्जांपल ये नया डेटा सेट है, इसको अगर आपने प्रिडिक्ट करना है तो यू शुड नॉट एक्सीडेंटली से कि ये चूंकि इसके बराबर इसके करीब है तो इसको आप रेड में असाइन कर दें या क्रॉस में असाइन कर दें. इट शुड बी असाइन टू द ब्लू क्लास. But if you have a highly irregular decision boundary which is trying to predict each training point correctly, so that you may end up in that those issues कि आप पे वो गलत prediction करना शुरू कर दें new data set पे. ठीक है. So this is overfitting and we want to also avoid that. This is the example of classification. Okay, so now let's try to look at ways. जो पहला हमने जो पढ़ना है it is called L2 weight regularization. And why do we call it regularization? We want to regularize or make the curve more smoother. ठीक है, क्योंकि देखें the more smoother the curve is, we are saying that okay that is fine. Although you do not want it to be very smooth, which is a straight line कि आप वो भी नहीं चाहते. लेकिन एटलीस्ट रेगुलराइजेशन विल गिव यू सम कंट्रोल के कितना आप अपना जो डिसीजन बाउंड्री है उसको स्मूथ रखना चाहते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग के किस तरीके से हमने इसको अवॉइड करना है, रेगुलराइजेशन को किस तरीके से आपने स्मूथ एक डिसीजन बाउंड्री को ऑब्टेन करना है. And let's look at these two examples. Okay, we have an hypothesis. This is H1. This is another hypothesis, H2. We know okay, pehla hypothesis is going to give you a curve like that. The second one is going to give you a curve like that. And for this slide, assume that we know adding these two parameters, x cube and x4, they are going to give you overfitting. And what we want to do is कि अगर हमें पता है ये तो किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं बट स्टिल कीपिंग द सेम हाइपोथेसिस H2. ठीक है. एंड दिस वी ऑल्सो नो कि हमने आखिर में तो कॉस्ट फंक्शन को ही यूज़ करना है क्योंकि दी प्रेडिक्शन आपका जो पूरा एल्गोरिथम है वो वही है कि यू हैव द हाइपोथेसिस, नेक्स्ट यू डिफाइन द कॉस्ट फंक्शन एंड देन यू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट. So the cost function for linear regression, it is this one. So let's say we have to use x2 and we have to minimize that. Now we know that if we want to minimize this hypothesis, this cost function, then we are going to get a shape like this, which is giving us, which is an overfitted solution. And in order to avoid that, what can we add to this cost function? कि आप जो है θ3 और θ4 को किस तरीके से जीरो कर दें. ठीक है. वी नो के H2 में ठीक है ये शामिल है θ3 और θ4. लेकिन इफ वी ऐड अ वैल्यू हेयर, अ टर्म हेयर कि जिसको मिनिमाइज करने से θ3 एंड θ4 विल गो टू जीरो, अगर वो हम यहाँ ऐड कर दें वो चीज़ तो बाय मिनिमाइजिंग J और θ3 एंड θ4 विल गो टू जीरो, विच विल मीन कि ये पार्ट उसमें शामिल ही नहीं है एंड वी आर गोइंग टू गेट ए शेप लाइक दिस. तो व्हाट शुड वी ऐड हियर? द क्वेश्चन इज कि हमको क्या ऐड करना चाहिए यहाँ? एनी गेसेस? लेट्स से स्टार्ट विद अ सिंपल गेस कि मैं कहता हूँ जी कि लेट्स ऐड θ3 एंड θ4. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन? आई वांट टू मिनिमाइज J. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ3 एंड θ4 दैट इज गोइंग टू मिनिमाइज J? and I give you these three options. Let's say कि θ3 की जो वैल्यू और θ4 की जो वैल्यू है उसको आपने चूज करना है फ्रॉम -∞, 0 एंड इन्फिनिटी. ठीक है. तीन वैल्यू से चूज करना है. तो व्हाट इज व्हिच ऑफ दीज थ्री वैल्यूज इज गोइंग टू गिव यू अ मिनिमम कॉस्ट J? -∞. -∞. ओके, गुड.
ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इज गोइंग टू डिक्रीज द कॉस्ट। जितना आप थीटा 3 थीटा 4 को कम करते जाएंगे उतना ही कॉस्ट और मिनिमम होती जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी इज गोइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट, बट व्हाट वी वांट इंस्टेड इज के थीटा 3 और थीटा 4 जीरो हो जाए, क्योंकि अदरवाइज तो फिर उनका कोई ना कोई वेट होगा एंड इट विल हैव एन इफेक्ट। व्हाट वी वांट इज के जब हम मिनिमाइज करें जे को, तो थीटा 3 एंड थीटा 4 जब जीरो हो तब जे मिनिमाइज हो। तो ये तो थीटा 3 और थीटा 4 को ऐड करना सही नहीं है, क्योंकि इट इज गोइंग टू जस्ट डिक्रीज, और इसलिए तो मिनिमाइज तब होगा जब आपका थीटा 3 और थीटा 4 माइनस इन्फिनिटी तक डिक्रीज करते जाएं। So how do we minimize or how do we modify theta 3 and theta 4? यहाँ किस तरीके से इसको चेंज करें कि we get 0 when j is when we want to minimize the cost function j. Or for the moment, let's also forget this. Let's say our cost function is simply theta 3 is only based on theta 3 and theta 4. तो अब तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल हो गया है। व्हाट शुड बी द इक्वेशन कि जिसको मिनिमाइज करने से थीटा 3 भी ज़ीरो हो और थीटा 4 भी ज़ीरो हो जाए, यानी कि इफ़ यू प्लॉट जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3, तो जे शुड बी मिनिमम व्हेन थीटा 3 इज ज़ीरो। इधर मिनिमम हो और बाकी जगहों पे शुड इंक्रीज, मे बी लेट्स से लाइक दिस। तो कि आप थीटा टी को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, जीरो से हटाएं, मूव करें आगे लेफ्ट या डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, योर जे द कॉस्ट शुड इंक्रीज। व्हाट इज दैट फंक्शन दैट इज गोइंग टू डू दैट? साउथ कामरान, साउथ कामरान। यस सर। जी, तो क्या होगा जे हम थीटा जो क्या यहाँ इक्वेशन लिखे हैं जिसकी वजह से आपके पास जे को मिनिमाइज करने से थीटा 3 की वैल्यू ज़ीरो हो। क्या थीटा 3 स्क्वायर इज गोइंग टू डू दैट? साउथ, आपसे क्वेश्चन है। साउथ सर कोई और हिंट दे दें। हिंट दे दिया ना, मुझे बताएं अभी कि आप देखें थीटा 3 आपने अब इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 3 जे विल बी मिनिमाइज और थीटा 3 स्क्वायर विल मिनिमाइज। आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करें थीटा 3 की। फॉर एग्जांपल थीटा 3 में आप डालते हैं -4, -2, 0 प्लेस करते हैं, 2 प्लेस करते हैं, 4 प्लेस करते हैं, तो साथ ही आप कंप्यूट करें थीटा 3 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, 2 का क्या है 4, 0, 4, 16। अब मुझे बताएं किस वैल्यू एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 3 स्क्वायर इज मिनिमम? जीरो। ठीक है, तो 0। So basically what we have to do is to add, if we want to make theta 3 and theta 4 0, we simply have to add the square of those terms, ठीक है। तो या हम पहले वही लिख लें कि ये आपके पास j है which is h2 of x minus y square, उसमें अगर आप ऐड कर दें थीटा 3 स्क्वायर प्लस थीटा 4 स्क्वायर, and if you try to minimize this equation, this is going to make theta 3 and theta 4 go to 0, right? And this is what we want, क्योंकि हमें ये पता है इस केस में
Okay, theta 3 and theta 4 are making the problem, or these two features x cube and x4, they are uh, will will make the prediction, will result in overfitting. तो उनको अगर avoid करने के लिए we can add these two terms, and for because of that theta 3 and theta 4 they are going to go to 0. जब वो अगर 0 पे जाते हैं then of course this term will go away and you will be left with only this part, which is going to give you a smoother solution and not result in overfitting. ठीक है. But now the question is, in general we do not know कि कौन से features आपको overfitting करा रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए in general what we do is कि instead we simply add all the parameters, theta 1 square plus theta 2 square plus theta 3 square plus theta 4 square, and not theta 0 क्योंकि वो बाइस term है, that is not included. And now when we try to minimize that, so we will have two parts. एक part तो आपके पास ये है, दूसरा part आपका ये है. ठीक है. This part will try to fit the training set, लेकिन साथ ये part भी है जो कि आपको एक smoother solution की तरफ वो एक smoother curve दे रहा होगा. ये आपको part होगा, it is going to try to fit the solution to the training set. ठीक है. तो basically what we want is इस सब को हम मल्टीप्लाई करें, जो थीटा 1 स्क्वायर से लेके थीटा 4 स्क्वायर को हम ऐड करके you multiply it with a parameter lambda, and then we can adjust this lambda कि किसका weight ज़्यादा होना चाहिए. अगर lambda let's say 0 है, then this goes away and then we are only trying to fit the training set, and this may lead to overfitting. Lambda 1 है, then we give some weightage to this part. Lambda 2 है, so we give more weightage to this part. So depending on the value of lambda, you will get the corresponding regularization. Let's say lambda 0 है तो no regularization, 1 है तो little bit regularization, 2 है some more regularization, and so on. ठीक है. In the extreme case, when you make lambda very big, then you are basically focusing only on this part, and this will have negligible effect. So in the extreme case, let's say कि lambda you set it to 1 million for example, then of course this will have more effect on the minimization. And in that case, it may happen that theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, they go to 0. And only remaining parameter is theta 0. So your prediction in the end will only be theta 0, which is, this is, the y-intercept. So you're going to get a line like this, the most smooth solution possible. So of course you do not want that as well. So आपने एक intermediate value between 0 and some non-zero lambda की value के दरमियान एक value choose करनी है, which is going to give you a right amount of smoothing and the right amount of regularization. Okay. जी, any question? ये अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे then I'm going to ask you. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे से then I'm not going to ask questions from you. So please, if you do not understand, just try to ask questions कि आपको क्या समझ नहीं आया, so I will help you here. जी. सर रेगुलराइजेशन में हम 0 क्यों स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? वही तो मैं पिछले 15 मिनट से ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर टर्म को इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वी वांट टू कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैरामीटर्स as small as possible. And the reason is I gave you the example from a simple case. Let's say we know that theta 3 and theta 4 they are creating overfitting. So what we can do is to add the square and these two terms. इनकी वजह से, and we know that कि अगर सिर्फ यही terms आपकी हैं cost में, तो the minimum solution will happen when theta 3 is 0 and theta 4 are 0. ठीक है. तो यही रीजन है ऐड करने की पैरामीटर कि वी वांट टू डिराइव द वेट्स, वी वांट टू कीप द वेट्स एज मिनिमम एज पॉसिबल, बट वी आल्सो हैव द डाटा टर्म के जो आपकी ट्रेनिंग सेट को फिट कर रही है, ट्रेनिंग डाटा को फिट कर रही है. तो वी वांट टू कीप अ बैलेंस बिटवीन the data term which is trying to fit to the training set, but as well as trying to keep the magnitude of the parameters as small as possible. ठीक है, तो इसलिए हमने स्क्वायर टर्म ऐड की है, क्योंकि for this we know कि the minimum happens when your
parameter are 0. Say that again. सर स्क्वायर क्यों ऐड की, ये सिंपल क्यों नहीं टर्म ऐड की, ये सवाल था। तो देखिए ये आपका थीटा 3 है और ये आपकी कॉस फंक्शन है। तो वही क्वेश्चन जो मैंने पहले आई थिंक साउथ से पूछा था, किससे पूछा था, आपसे पूछता हूँ मैं कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 3 at what value of theta 3 and remember j is theta 3 square। ठीक है, तो हम प्लॉट कर रहे हैं थीटा 3 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3 स्क्वायर। थीटा 3 0 होगा तो व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 0? 0। थीटा 3 1 है तो व्हाट विल बी द स्क्वायर? वो 1 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली -1 पे 1 होगा, 2 पे क्या होगा स्क्वायर? 4 होगा। एंड सो यू आर गोइंग टू गेट अ शेप लाइक दिस। ठीक है, दिस पार्ट इज टचिंग 0 बेसिकली। तो अब मुझे बताएं कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 3 आपका कॉस्ट 0 आ रही है? 0 पे सर वो समझ आ 0। गई है, बस ये पूछ रहे हैं यहाँ पे थीटा 3 स्क्वायर के साथ क्यों कह रहे हैं, सर हम स्क्वायर पावर क्यों? 4 भी ले सकते हैं अगर ये लॉजिक फॉलो करें कि इसको बढ़ना चाहिए दोनों एक्सिस के दोनों साइडों पे, तो हम कोई भी इवन पावर ले सकते हैं। कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मोर प्रोनाउंस होगा। कि उसमें बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ के वो मोर एग्रेसिवली आप कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू कम हो। दैट यू कैन ऑल्सो एड्रेस बाय एडिंग दिस, बाय चेंजिंग दिस लैम्डा पैरामीटर। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कीपिंग इट स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइंग विद द लैम्डा पैरामीटर, जिसको आप वेरी करके वो जो आप एड्रेस कर सकते हैं कितना आपने इस रेगुलराइजेशन टर्म को वेटेज देना है। ठीक है, so this is my final cost function, or maybe this one here। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि इफ आई नो कि ये दो causing overfitting, then I can add this term with some regularization parameter जो कि बहुत ज़्यादा है 1000, ताकि this is going to force theta 3 and theta 4 to 0। ठीक है, तभी आपका j मिनिमम होगा। अदरवाइज तो अगर सिर्फ आप थीटा डालते हैं स्क्वायर के अलावा, देन यू विल द मिनिमम ऑफ j विल अकर के जब आप थीटा 3 और थीटा 4 को भी नेगेटिव वैल्यू ले लें। एंड वी नो कि नेगेटिव जितनी मर्जी नेगेटिव वैल्यू ले लें तो आपका तो कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट कम तब होगी जब आपका थीटा 3 एंड थीटा 4 दे आर 0, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। यहाँ हम मिनिमम नहीं चाहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी नहीं चाहते हैं। वी वांट कि थीटा 3 और थीटा 4 0 हो जाए ताकि ये टर्म दे गो अवे एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस पार्ट। And in general, what we want is that we want these parameters to have small weight, so that we do not get this overfitting। ठीक है, तो this is the situation के ये आप टर्म ऐड करते हैं और ये आपने ऐड किया है for all the parameters except for the first parameter which is the bias term। उसके अलावा बाकी सब का आपने स्क्वायर लेके ऐड किया, then you multiply with the lambda which is the regularization parameter जो कि आपको सेट करते हैं। This part is the training, you can call it data term। जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो this part is trying to fit to the data, कि जैसा डाटा है उस लिहाज से फिट करेगा। This part is going to try to make your weights as small as possible। तो इन दोनों को जब मिनिमाइज करने से you are going to get a balance between fitting to data and then also keeping the parameter small, which in return is going to give you a smooth curve। ठीक है, also depending on this lambda parameter, कि जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे वैल्यू को, उतना ही ज़्यादा आपको जो कर्व है वो ज़्यादा स्मूथ मिलेगा। और इसको ज़ीरो कर देंगे तो in that case this term will go away, then you will be left with the term that you had before। और इसमें अगर आपका hypothesis is complex तो you're going to get a overfitting problem again। Okay, so similar thing happens when you have an artificial neural network। अगर आप बहुत आपका complex neural network है, for example something like this, तो उस केस में you do not know कि इनमें से कौन से न्यूरॉन या कौन सी hidden layer is causing the overfitting। तो instead what you are going to do is to add this parameter, this term to your cost term। ठीक है,
उसको ऐड करने से क्या होगा, दिस थीटा जे इज बेसिकली द वेट्स ऑफ ऑल विच लाई ऑन ऑल दीज एजेस, इन सब को बेसिकली आपने ऐड किया इंस्टेड अपार्ट फ्रॉम द बायस टर्म, उनके अलावा बाकी सब वेट्स का स्क्वायर लेके आपने इस टर्म को ऐड किया इधर, ठीक है। What you want is to keep the magnitude of all these weights as small as possible, and again देखें इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि आपने, दिस इज द प्रॉब्लम कि आपने इसको, ठीक है, इस डेटा सेट को फिट करना है विद सम हाइपोथेसिस। अब देयर आर मल्टीपल हाइपोथेसिस विच आर फिटिंग, एक ये भी फिट कर रहा है, एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स कर रहा है। यू वांट टू कीप अ मॉडल जिसमें आपकी जो वेट्स हैं वो कम से कम है, ठीक है, विच आर मिनिमम। सो दैट इज व्हाई यू ऐड दिस टर्म हियर, और उसकी मदद से आपको ये अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इफ यू सेट लैम्डा टू 0, this part goes away and then you are left with only the data term, which is simply going to give you minimum cost when you get zero error. And so if your model has the capacity to get you a non-linear decision boundary like this, it is going to give you that. Of course, if you have a linear classifier, then even if you set it to 0 you are still going to get this, क्योंकि आपका मॉडल ही बहुत सिंपल है, ठीक है। So this regularization will help only when you have a complex model and you add this regularization term के आप फिर उसको smooth कर सकें। With lambda 5 you have added some regularization, so you may get a shape like this green curve here. lambda को और further बढ़ाएंगे आप तो you may get into the domain of underfitting. अभी आपने lambda को इतना इंक्रीज कर दिया है कि which is also not right, and if you increase it any further, probably what you are going to do is कि जितने भी आपके weight parameters हैं they go to 0 और आपका सिर्फ जो बायस टर्म है वो रहती है, and then you're going to get the shallow line, ठीक है। तो this is a parameter which is also a hyper parameter जो कि आपने खुद ट्यून करना है और and try to find the best value possible for a given problem, ठीक है, कि आपका ओवरफिटिंग ना हो और अंडरफिटिंग भी ना हो। So this is an example of overfitting. This is the example of underfitting. So this is the right value in this example, in the dummy example. Any question? सर ये जो आपने बताया है ये सर पिछली साइड खोलें। जी यहाँ पे हमने जब लैम्डा को 10 में किया तो लैम्डा को इंक्रीज करने से कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है डिक्रीज, तो ग्राफ तो स्मूथ जी होना चाहिए। स्मूथ हुआ है ना, देखें सॉरी, ये आपका लैम्डा 0 है, फिर ये लैम्डा 5 है, ये लैम्डा 10 है, तो स्ट्रेट लाइन इज मच मोर स्मूथर देन लैम्डा इज इक्वल टू 5, और लैम्डा 100 तो यू जस्ट गेट हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि उसमें अगेन दिस इज डमी एग्जांपल, इन रियलिटी में भी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एग्जांपल्स आपको वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, लैम्डा को मे बी 1000 करना पड़े, ज़्यादा करना पड़े टू गेट अ सिचुएशन लाइक दिस। बाय इंक्रीजिंग lambda, this is how things will change. थैंक यू सर। Okay. Okay, just to recap, overfitting ये है कि when your model is only has a data term जिसको उसने मिनिमाइज करना है, तो ऑफ कोर्स अगर सिर्फ डाटा टर्म को ही मिनिमाइज करना है तो उस केस में इट इज गोइंग टू, योर मॉडल इज गोइंग टू डू इट्स बेस्ट, जो जितना वो कर सकता है। अगर वो 0 एरर दे सकता है तो इट इज गोइंग टू गिव यू 0 एरर, और इट दैट में एंड अप इन दिस सिचुएशन के आपको 0 एरर देने के लिए उसको इस तरह का एक इरेगुलर सा शेप बनाना पड़े। तो व्हाट यू डू इज टू ऐड दिस रेगुलराइजेशन टर्म विच जिसका इफेक्ट ये होगा कॉस्ट फंक्शन पे कि आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है वो जितना कम से कम हो सकता है हो, और साथ ही साथ आपका जो डेटा टर्म तो एग्जिस्ट करती है कि आप साथ डेटा को भी फिट कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो वांट टू कीप योर कर्व और योर प्रिडिक्शन रेगुलर और रेगुलराइज्ड, ठीक है। and then you have this hyper parameter that you have to tune to get a reasonable prediction कि ना वो overfitting
साइड पे जाए, ना ही अंडरफिटिंग पे, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ अवॉइडिंग ओवरफिटिंग। ये अब काम आपने अपनी लैब में भी किया था, प्रोबेबली लैब 4 में। इन PyTorch it is very easy to add regularization when one you are yeah, before actually going to PyTorch या implementation, let's also look at कि हम इसको once you define this is the cost function, remember कि हम what is the procedure, we define the cost function, फिर हम cost function को minimize करते हैं using gradient descent। तो अभी इसको अगर आपने minimize करना है with using gradient descent, you need to know the derivative of that with respect to all the parameters, ठीक है। तो ये इस पोर्शन का तो आपने पहले से कंप्यूट किया हुआ है, आपको पता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव। ये नया पार्ट है, इसका कंप्यूट करना भी आसान है। ये बेसिकली दिस इज सम ऑफ, इसको अगर हम लिखें तो इट इज बेसिकली यू नो लेट्स से कि आपके पास टोटल 4 पैरामीटर्स हैं, तो θ1 प्लस θ2 स्क्वायर प्लस θ3 स्क्वायर प्लस θ4 स्क्वायर। If you are trying to compute the derivative with respect to θ2, so of course this is constant, this is constant, this is constant as far as θ2 is concerned, सिर्फ आपको ये टर्म बचती है। तो θ2 का डेरिवेटिव क्या होगा θ2 स्क्वायर का, इट इज सिंपली 2 टाइम्स θ2 स्क्वायर, 2 टाइम्स θ2, राइट। तो यही पार्ट आपने ऐड करना है जब आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हुए इस पार्ट का डेरिवेटिव में आपने ये पार्ट ऐड कर देना है, ठीक है, हर पैरामीटर के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल θ3 होगा तो यू विल दिस विल बी 2 टाइम्स 2 θ3 एंड सो ऑन। तो ये था इससे पहले की सिचुएशन कि अगर आपने अपडेट करना है तो θ0 को तो चूंकि हम बाय इसमें रेगुलराइज नहीं करते, दिस विल रिमेन एज इज। बाकी पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए यू हैव टू ऐड दिस पार्ट, इट इज डेरिवेटिव ऑफ द टर्म जो आपने ऐड की, ठीक है, इसको आपने ऐड करना है। सिमिलर इज द सिचुएशन फॉर रेगुलराइज्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये हम बात कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन की। रेगुलराइज्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी दिस वाज द कॉस्ट फंक्शन जो कि पहले हमने यूज़ की थी। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव टू ऐड दिस पार्ट विच इज़ द अगेन द सेम टर्म, आपने θj स्क्वायर किया है। और इसको मिनिमाइज करने का भी तरीका वही है कि यू हैव टू ऐड दिस टर्म। पहले आपके पास ये पार्ट था, अभी आपने ये भी ऐड किया है, दी डेरिवेटिव ऑफ दी टर्म यू हैव एडेड। ओके, जब अभी बात आ गई PyTorch में। PyTorch में इट इज़ वेरी इजी टू ऐड L2 वेट रेगुलराइजेशन व्हेन यू डिसाइड कि आपने कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ये अभी तक हमने पढ़ा है, वही आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें आप फंक्शन में देयर इज अ टर्म वेट के जो आप स्पेसिफाई करते हैं। इफ इट इज 0 इट मींस यू आर डूइंग नो रेगुलराइजेशन। इफ इट हैज सम अदर वैल्यू, लेट्स से लैम्डा, इफ k is 1, then essentially what you mean is that my cost function is this के लैम्डा की जगह 1 डाल दें, ठीक है। और आपने फिर जो अपडेट करेंगे तो इसको इस तरीके से अपडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली PyTorch is going to do that, add this term to the gradient, okay। तो दिस वेट डिके इज बेसिकली लैम्डा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो भी आपकी लैम्डा हम चूज करते हैं वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली PyTorch is going to take care of all the derivatives, वो ऑटोमेटिकली आपको एक रेगुलराइज्ड सोल्यूशन देगा, ठीक है। ये आपने लैब 4 में किया भी था। Okay, so we have looked at L2 weight regularization। उसमें आपने क्या किया है कि we have modified the cost function, we have added a term। और term क्या थी? Simply we have added this term। बाइस टर्म को आपने ऐड नहीं किया θ0 को, बाकी सब का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया है कॉस्ट फंक्शन में। उसको मिनिमाइज करते हुए फिर आपने इसका डेरिवेटिव हर अपडेट स्टेप में ऐड किया है। और इन PyTorch सिंपली आपने सब ये चीज़ चेंज करनी है। व्हाटएवर लैम्डा यू स्पेसिफाई वो आप यहाँ 0 की जगह वो लिख देंगे, एंड यू विल हैव ए रेगुलराइज्ड L2 वेटेड रेगुलराइज्ड सोल्यूशन। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? एनी क्वेश्चन? ओके, तो जस्ट टू कंफर्म कि आपको समझ आ गई है।
सर मेरा मोहम्मद एक उजैर। सवाल है। हाँ जी, आप सवाल पूछ लें। सर कभी ये भी होता है कि बेस्ट वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0 पे आती है, जैसे लैब 4 में आ रही थी मेरी। ठीक है, आई मीन इट कैन हैपन। देखें, बात यह है कि इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि आपका हाइपोथेसिस आपने ये यूज़ किया है, तो इट इज़ ऑलरेडी दी ऑप्टिमल हाइपोथेसिस। इसमें अगर आप रेगुलराइज करेंगे तो द सोल्यूशन वुड गो टू अ लीनियर सोल्यूशन, या मे बी गो टू हॉरिजॉन्टल, इस तरह का सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो इस केस में यू मे एंड अप गेटिंग ए, तो इस केस में यू डोंट नीड टू रेगुलराइज। तो रेगुलराइज आप तभी करते हैं जब आपके पास एक मॉडल कॉम्प्लेक्स है एंड यू आर, आगे हम इसी लेक्चर में, आज तो नहीं लेकिन कल हम देखेंगे कि यू विल नो कि कब आपने रेगुलराइज करना है, कब लैम्डा की वैल्यू 0 रखनी है, कब नहीं रखनी है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड कि आपका हाइपोथेसिस क्या आएगा। हाइपोथेसिस आपका ये आपने चूज किया तो लैम्डा 0 इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर दिस केस। इस केस में चूंकि आपका मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो लैम्डा आपने रेगुलराइज नहीं करेंगे तो यू विल हैव एन ओवरफिटेड सोल्यूशन। तो इट्स परफेक्टली ओके कि आपका अगर लैम्डा 0 पे अच्छा सोल्यूशन आ रहा है। ऑल्दो लैब 4 में आई डोंट नो, अगर आप इट डिपेंड्स कि उसमें मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली उसमें क्या सिचुएशन थी, लेकिन बट आई मीन इट कैन हैपन कि आपका लैम्डा 0 पे एक अच्छा सोल्यूशन आ जाए एंड यू डोंट नीड टू रेगुलराइज। ठीक है, तो रेगुलराइज तभी आप करते हैं जब आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स है, या यू डू नॉट नो कि अगर ओवरफिटिंग हो रही है तो कौन से पैरामीटर की वजह से हो रही है, देन यू डू द रेगुलराइजेशन। ओके, मोहम्मद सर उजैर, जी आप क्वेश्चन पूछ लें। सर जब टेस्ट एक्यूरेसी ज्यादा आती है ट्रेनिंग एक्यूरेसी से, तो ये भी ओवरफिटिंग होती है? जी हाँ, होती तो वही है ना, वही बाय डेफिनेशन तो यही है कि आपकी टेस्ट एक्यूरेसी ज़्यादा, टेस्ट एरर ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है और ट्रेनिंग एरर कम है, और उसमें गैप ज़्यादा है ट्रेनिंग एरर में और टेस्ट एरर में, नहीं देन सर, यू नो एरर कि नहीं, accuracy। ओवरफिटिंग है। मतलब कि टेस्ट एक्यूरेसी आपकी फॉर एग्जांपल 95 आ रही है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी 90% है। तो उस केस में यू कैन नॉट से ओवरफिटिंग, क्योंकि उसमें तो टेस्ट एरर, टेस्ट एक्यूरेसी ज़्यादा है ना, 95 है और ट्रेनिंग 90 है। तो प्रोबेबली उसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी तक आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है, तो इनिशियली यू मे बी गेटिंग समथिंग लाइक दैट, या द प्रॉब्लम इज सच के उसमें यू नो आपने या डिवीजन आपकी जो ट्रेनिंग और टेस्ट सेट की है वो सही नहीं है, या बाय चांस आपके पास टेस्ट सेट आसान आ गया है, तो वो काफ़ी वो आप ये कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ओवरफिटिंग, क्योंकि ओवरफिटिंग विल हैपन जब आपकी टेस्ट एक्यूरेसी बहुत कम है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा और ठीक है। ठीक है, सर मतलब कि जब एक्यूरेसी ट्रेनिंग से ज्यादा आएगी तो बस गलत है कुछ जो हमने किया। whenever you know there is a difference between the gap is larger between test accuracy and training accuracy, तो उसमें फिर आप अगर ट्रेनिंग एरर ज़्यादा है, टेस्ट एक्यूरेसी कम है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा है और ये गैप काफ़ी बड़ा है, तो देन इट इज़ ओवरफिटिंग। लेकिन अगर टेस्ट एक्यूरेसी ज़्यादा है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम है तो ओवरफिटिंग नहीं है, वो देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स देन। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो हमने पहला पढ़ा ओवरफिटिंग को अवॉइड करने का। सेकंड वन जो कि आपने लैब में भी किया था, इट इज ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट, व्हाट इट डज, एंड इट इज स्पेसिफिक टू द न्यूरल नेटवर्क, व्हाट इट डज इज के यू स्पेसिफाई, और लेट्स से कि आपके पास ये एक एग्जांपल यहाँ गिवन है कि ये आपके पास न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 2 हिडन लेयर्स हैं एंड यू वांट टू अप्लाई ड्रॉप आउट टू दिस लेयर। The dropout will, and you specify the probability, which is, let's say, 0.5. 0.5 means you randomly select 50% of the neurons and then you remove them in that iteration. Remove them means you do not consider the output of those neuron for that iteration. कि अगर आपने let's say इस वाले को remove किया है तो जिसका output जा रहा है उसको आप नहीं use करेंगे in order to compute the output of this neuron. ठीक है, तो दिस इज ड्रॉप आउट।
Okay, you randomly select neurons and remove them along with their incoming and outgoing connections. अगर इसको remove किया totally ये सारे connections remove हो गए, and then you're going to assume कि for this iteration this neuron does not exist, और जो भी आपका output आता है उसके बगैर आप compute करेंगे. और तो इसका जो हाइपर पैरामीटर है जो कि आपने खुद स्पेसिफाई करते हैं which is this probability 0.5. You can say 0.1 which means कि आपने फिर 10% randomly choose करने हैं जिनको remove करना है. If the probability is 0.9 then you have to select 90% neurons and randomly remove them and then compute the output at each iteration. हर iteration में वो randomly आपने different neurons आपने choose करने हैं. ठीक है, ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने कह दिया कि ये निकालने हैं तो वो हर दफ़ा वही निकालने हैं, फिर तो मतलब ये कि आपके न्यूरल नेटवर्क में वो न्यूरॉन है ही नहीं. बट द थिंग इज कि हर इटरेशन में रैंडमली आपने न्यूरॉन चूज करने हैं और उनको रिमूव कर देना है. So how will it benefit overfitting? Because it will then force the network to use all neurons. When you force the network to use the whole network, कि सारे न्यूरॉन को यूज करें in order to make the prediction, then the output prediction would be more robust and it will not be sensitive to the noise or the variation in your training set. ठीक है, तो इस तरीके से वो आपका जो जो फाइनल प्रेडिक्शन है it will be more robust and it will avoid overfitting. So let's have an example. Let's say we want to apply dropout to, let's take this example कि ये आपके पास इसी को हम इसी लेयर पे अप्लाई करना चाहते हैं और इंस्टेड ऑफ 4 न्यूरॉन्स यू हैव 5 न्यूरॉन्स. ठीक है, क्योंकि अगली एग्जांपल में आई हैव 5 न्यूरॉन्स. So how will we do that? And the probability is 0.5, so we have to choose 50% of the neurons. Let's say this is the output of the neuron.